Good morning, learners. I hope you must have studied and come today. We'll be having the practicals. So kindly be with your notebook, your calculator, your scale, your pencil. Everything should be ready, available to you all. Okay. If you have not brought, kindly bring it so that you should not be left behind with your classmates because we are going to solve practical questions today. Okay. But before going to that, now let me remind you, we have already encroached the syllabus aspect of uh, first year BAP for financial accounting, and the syllabus which we have started is the chapter 1, which consists the accounting standard, how the ICAI is, framing the accounting standard, making their bill first, and then they are passing it through parliament. And finally, once it is accounting standard, it is an act. It is applicable for all the businessmen to follow. It is mandatory for all the businessmen to follow. So we have seen how the accounting concepts, conventions, general accepted accounting principle, okay, GAAP, US GAAP, then IAS, International Accounting Standard, and AS is framed in a different interval, and it is applicable for across the globe. Whosoever is recording their business transaction should follow this methodology. Okay, is this clear? In that AS, we have 3 accounting standards in our syllabus: Accounting Standard 1, Accounting Standard 2, and Accounting Standard 9. Accounting Standard 1, we have seen this disclosure of all policies, all the accounting norms is mandatory for all companies which are listed in Bombay Stock Exchange or National Stock Exchange, or who are registered under Companies Act in India. They have to mandatory follow those standards. And AS2 is talking about inventory. Inventory, we have also seen there were 3 types of inventory: inventory as raw material, inventory as work in progress, and inventory as finished goods. For WIP, there is a different standard which is to be followed by everyone, and thereby we will consider material as 100%, labor and overhead as 50-50%. For raw material and finished goods, it is always by counting how much material. Say, for example, we are making the wooden furniture. So the plywood, what ply we are getting is a raw material. Yes or no? अगर वुडन फर्नीचर बनाते हैं तो प्लाई जो आता है घर में, या आपने देखा रहेगा कारपेंटर्स जो यूज करते हैं, वो आपका रॉ मटेरियल है कि नहीं? उसी प्लाई को कट करके शेप देके उन लोग वुडन फर्नीचर्स बनाते हैं. तो फर्नीचर इज योर फिनिश्ड गुड्स. Okay, so that can always be countable, that can always be multiplied. जैसे आपने बोला आटा was raw material, चपाती is again finished goods. Yes or no? तो आटा का भी आप क्वांटिटी क्लासिफाई कर सकते हैं, रेट क्लासिफाई कर सकते हैं, हाँ या ना? ओके. सिमिलरली चपाती का भी क्वांटिफाई कर सकते हैं एंड रेट डिफाइन कर सकते हैं. सो द inventory is to be valued in 2 methods. It is accounted by 2 methods. One is periodic method, which you have learned in FIJC and SYJC. Honestly speaking, your trading account was nothing but stock account. Opening stock, purchase of stock, sale of stock, closing stock. Yes or no? Only you were recording sale of stock at sale price. That is why balance was your gross profit. Do you agree with me or not? हाँ या ना? अगर कॉस्ट पे लेंगे तो it will tally. Okay, that also I'll teach you in due course. So that was periodic method. The second method is perpetual method. Perpetual method is what? Method where the stock is to be recorded on regular basis, on daily basis. Like for college, students are stock.
These are raw material of first year. When they will clear their third year, it will be finished goods or ESCOM. So these are the two methods with us: perpetual system and periodic system. Okay. So first we are not going to learn perpetual system. Like your attendance muster, on daily basis we are uploading the attendance. It is perpetual system. How many student is coming, how many of them absent, and after every month, that is called periodic system for keeping the record. Okay. So in perpetual system, the format is like this. What is the date? How many quantity we got? Either purchase or received. Either purchase or received. Either sale or issued. And what is the value? Okay. This is how we will keep the record. Date. I told you, who is keeping this record? कौन करता है ये? Whose job it is? कौन करेगा ये रिकॉर्ड मेंटेन? अपने अपने सोसाइटी के गेटकीपर, हाँ, गोडाउन कीपर, वॉचमैन, स्टोर कीपर, कि भैया इतने का स्टॉक आया, इतना गया और इतना बचा है, इतने आया. उसके लिए कोई फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत नहीं है, सीए और एमबीए होने की जरूरत नहीं है. बेसिक एजुकेशन इज मोर देन सफिशिएंट टू फिनिश दैट जॉब. यस और नो? आया ना? ओके. सो टू रिकॉर्ड, how to record, whether first in first out we will take, last in first out we will take. What do you mean by first in first out? जो स्टॉक पहला आया वो स्टॉक पहले बिकेगा. What is first in first out? First in first out, जो स्टॉक पहले आया वो स्टॉक पहले बिकेगा. Okay. Most of the businessmen follow first in first out method. You must have experience कि कभी आप जनरल स्टोर या किराना स्टोर पे गए और उनके पास कोई नया स्टॉक आया और उसका भाव ज्यादा है, तो आपको ऑलवेज बोलता है कि सर ये पुराना वाला लेके जाओ, इसमें थोड़ा कम रेट है. आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस करा है? कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है? सपोज कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए गए और उसके पास उसका नया स्टॉक भी आया बट पुराना स्टॉक पड़ा हुआ था. वो बताता है सर पुराने स्टॉक का ये भाव है, अभी भी एक्सपायरी डेट गया नहीं, नए स्टॉक का ये भाव है, ये लेके जाओगे थोड़ा सस्ता गिरेगा. यस और नो? टेल मी, वी हैव 80 स्टूडेंट्स. yes sir, yes sir. Don't put any messages. Yes. Please. I told you several times, मैं chat ही ब्लॉक कर दूंगा. I want virtual class. Okay. There has to be two-way communication, and that's why I have allowed you to speak. Yes. तो इसको क्या कहेंगे? This is known as first in first out method. जो पहला गुड्स आया उसको पहला बेचना चाहता है. यस और नो? हाँ या ना? ओके. Yes, Yes. sir. नाउ अब सपोज एक कंस्ट्रक्शन हो रहा है और सीमेंट का गोनी आया, ठीक है? तो वो क्या करेगा? पहला एक गोनी रखेगा, उसके ऊपर गोनी रखेगा, गोनी रखेगा, गोनी रखेगा, गोनी रखेगा, गोनी रखेगा, गोनी रखेगा. यस. अब जब यूज करेगा नीचे वाला गोनी निकलेगा क्या उससे? No. तो कौन सा गोनी पहला यूज करेगा? Top one. जो लास्ट हाँ, जो लास्ट में रख. सबसे ऊपर आया, मतलब वो सबसे लास्ट में आया ना, तो उसमें कौन सा मेथड फॉलो हो रहा है? लास्ट इन फर्स्ट आउट. अंडरस्टूड व्हाट इज द डिफरेंस? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब पहला आया. सपोज ऐसा नहीं रखा गोनी, उसने ऐसे रखा, एक गोनी के बाद एक गोनी, एक गोनी के बाद एक गोनी, एक गोनी के बाद एक गोनी, ऐसा रखा.
then they may use first in first out. Yes or no? Yes, sir. अदरवाइज उसको लास्ट इन फर्स्ट आउट करना पड़ेगा. तो अभी आपने देखा मोस्ट ऑफ द बिजनेस इज फॉलोइंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. आपने भी एक्सपीरियंस करा है. रुचि करके कोई एक लड़की है, मेगा करके भी एक लड़की है, उन्होंने भी एक्सपीरियंस करा है कि सर जब हम किराने वाले के पास जाते हैं और पुराना कुछ रहता है तो पहले बोलता है ये लेके जाओ. ठीक है. और किसी ने एक्सपीरियंस करा है? Yes, sir. और किसी ने भी एक्सपीरियंस किया है. ओके. नाउ कैन यू टेल मी व्हिच particular companies following last in first? So majority of the company honestly they follow first in first out method. First in first out method. हमारे कॉलेज में भी है. ये जो थर्ड ईयर के बच्चे हैं वो आज से 2 साल पहले आए थे हमारे कॉलेज में. वो पहले कॉलेज से निकलेंगे. यस और नो? जो अभी ये सेकेंड ईयर के हैं वो आपसे 1 साल पहले आए थे. आप इसके 2 साल बाद निकलोगे. हाँ या ना? तो आपके भी केस में Yes, क्या है? Yes, फर्स्ट sir. इन फर्स्ट आउट. First. इसके लिए हम लोग जब भी ये फेयरवेल सेलिब्रेट करते हैं उसका नॉमेनक्लेचर ही है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. और आपका नॉमेनक्लेचर है जश्न. जब भी आप पहली बार आओगे, जब भी आपका फ्रेशर पार्टी देंगे वो लोग. ओके. सो कौन सी ऐसी कंपनीज है, कौन सा ऐसा बिजनेस है विच फॉलोज लास्ट इन फर्स्ट आउट? सर जब भी न्यू फोन्स आते हैं तो सब लोग नया वाला लाइक सिलेक्ट करते हैं मॉडल पुराने से, तो वो हो सकता है लास्ट इन फर्स्ट आउट. Yes, फोन वाले में भी it is applicable and which are very common. Dairy products. Absolutely right. ठीक है. 4 दिन पुराना दूध है और आज का दूध है, कौन सा पहला लोगे तुम लोग? आज का वाला. आज का. तो ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रीज में लास्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो नहीं होता है. नॉट ओनली डेयरी, ऑल perishable products. All perishable products which they follow last in first out. वो पहला कौन सा बेचना का कोशिश करेगा? जो बाद में आया. फ्रूट्स ले लो, वेजिटेबल ले लो, फिश ले लो, एनीथिंग. मिल्क प्रोडक्ट ले लो. यस और नो? ऑल. कितने बच्चे Yes, हैं? sir. Yes, sir. Yes, sir. ज्यादा बच्चे आने लगे. 76 बच्चा पार्टी. वेरी गुड. ओके. बट एज पर अभी देखो कोई भी कुछ भी, देर आर अनदर मेथड ऑल्सो. FIFO करके एक मेथड है, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट. तो सबसे ज्यादा प्राइस में आएगा उसको पहला बेच डालो, है ना? फायदा मिलेगा ना उसको. अब बोलते हैं अगर हर बिजनेसमैन अलग अलग मेथड फॉलो करेगा तो अकाउंटेबिलिटी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी गवर्नमेंट के लिए. इसलिए गवर्नमेंट ने बोला है as per AS2 there will be only 2 methods which you can follow. One is weighted average method, another is FIFO method. Okay, one is weighted average method, another is FIFO method. So first we will learn FIFO method. First in, first out method. First in, first out. Here है सारा बच्चा पार्टी को. Okay. Based on that, let me take this illustration. Okay. From FIFO, there are following information for the year 2020. 14 को 20 कर दो, ये 21 कर दो. So like how your attendance muster is, similarly this muster is, जिसको बोलते हैं स्टोर लेजर. क्या कहलाता है ये? स्टोर लेजर. It is also known as bin card.
बिन कार्ड में क्या होता है, रेट नहीं लिखा रहता है, ओनली क्वांटिटीज आर मेंशन्ड. So if you go to the company visit or factory visit, they'll have bin card. उसको रेट से कोई लेना देना नहीं. But here it is known as store ledger, stock register भी बोलते हैं. उसमें क्या क्या लिखते हैं, your date, purchase, कितना क्वांटिटी था, क्या रेट था, क्या अमाउंट हुआ, सेल्स कितना क्वांटिटी था, क्या रेट था, क्या अमाउंट हुआ, और बैलेंस कितना बचा. क्लियर है? तो जब भी आप ये सम सॉल्व करोगे, अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं समझने का, अपने आप को क्या समझने का, गोडाउन कीपर. अभी गोडाउन कीपर को पता रहता है क्या एक्चुअली ये मार्केट में कितने भाव में बिकेगा, पता रहता है क्या, इसका एक्चुअल सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट, ये सब. सो आपको सारा रिकॉर्ड कॉस्ट प्राइस पे करने का है. सेलिंग प्राइस दिया रहेगा तो इग्नोर करने का. क्या करने का, इग्नोर. एवरी रिकॉर्ड टू बी मेंटेन एट कॉस्ट प्राइस. सही है? तो ये सारी चीजें आपके नोटबुक में एज अ पॉइंटर लिख के रखें. ओके, एंड दिस ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चन विल कम slowly and gradually, and we will take it up. So जनवरी में इनके पास 100 यूनिट आया, at the rate of 40 per unit. तो मैं एक गोडाउन कीपर हूं, मैं क्या करूंगा, जनवरी में रिकॉर्ड लिखना चालू करूंगा. तो ये फॉर्मेट बना लो सारे बच्चे पहले. दिस इज द फॉर्मेट. And which method we are following? FIFO. हम लोग क्या लिखेंगे, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक बाय FIFO. FIFO मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. ईयर 21, परचेज, सेल, हर एक में 3-3 कॉलम्स होंगे. Verai, Akansha, Ritesh, Sir, Jeet, दिव्यश्री, ये सब तो मुझे पढ़ते हुए दिख रहे. प्राची, प्रिया, रितिका ऑल्सो पढ़ रहे. बाकी का मुझे पता नहीं पढ़ रहे कि नहीं. बट दीज असाइनमेंट आई एम गोइंग टू चेक ऑन रेगुलर बेसिस. ठीक है? अगर आपके सीनियर्स, आपके ब्रदर सिस्टर मेरे अंडर में पढ़े रहेंगे, उनसे पूछना. आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट all the assignments, and accordingly only you are going to get the internal marks. And believe me, if you will follow me, definitely you are going to score 100 out of 100. There is no doubt about it. बस मैं इतना प्रैक्टिस कराऊंगा कि 100 मार्क्स आ ही जाने. फॉर्मेट बना लिया आप लोगों ने पेंसिल से? रेडी है? कैन वी प्रोसीड? क्वेश्चन सॉल्व करें हम? राची, प्रिया, सब. चलो ठीक है. तो हमारे पास क्या आया था बेटा, देखो. वी गॉट इन जनवरी 100 यूनिट 40 पर रेट. हम लोग क्या करेंगे, पहले जनवरी लिखेंगे.
कितना क्वांटिटी आया बेटा? व्हाट वाज द क्वांटिटी? अबे क्वांटिटी, हाँ 100 यूनिट। क्या रेट था? 40 40 per unit. तो अमाउंट 40 कितना होगा? 40 unit. तो व्हाट विल बी द अमाउंट? 4,000 4,000. 4,000 सेल हुआ क्या? 4,000 per unit. नो 40 पर यूनिट, अमाउंट इज 4,000। सेल हुआ क्या जनवरी में कुछ? No sir. नो सर, देयर वर नो सेल। व्हाट इज द क्वांटिटी लेफ्ट विद अस? 100 4,000 यस 100, रेट 40 40 40, अमाउंट amount 4,000 4,000 हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में कब लिखूंगा? तब तक बैठा रहूंगा, मेरे को कोई काम धंधा नहीं है, आई विल बी फ्री। यस और नो? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कब लिखूंगा? इन द मंथ ऑफ March. March. In the month of March. March. Okay, how much? Sir, 100 100 units. units. 100 units, sir. What will be the rate? 50 50. 50 is the rate, sir. What will be the amount? 5,000 5,000. 5,000, sir. Was there any sale? No. No, sir. No, No, sir. No, sir. Sale तो नहीं था, sir. वहाँ तो blank हो जाएगा. Now what is balance with us? 100. 100. What will be the value rate? 50. हाँ? 50. ये भी तो है मेरे पास। ये 40 वाला थोड़ी बिका है। 90 रेट होगा। अरे बाबा, पहला तो ये भी आएगा ना। हाँ, तो पहला 100 के कौन से भाव से आएगा? 40 के भाव से आएगा। 4,000, यस और नो? ये दूसरा 100 आएगा 50 के भाव से। Again. Sir, can you repeat again? बेटा, this 100 वाला we have not sold, which we bought in January. So in March also this will be with me, no? In balance, हाँ, first हाँ. I will write this, no? Then I will write this one. हाँ, Is sir. it clear? Okay, sir. Clear to everyone? Yes sir. Sir, and we have to give time Sorry? if continuous months are not there. नहीं, मैं अभी तो एक्सप्लेन करने के लिए, अच्छा नीटली देखने के लिए ऐसा लिखा हूँ। Okay, okay. क्लियर है? अरे एक Yes, वॉचमैन सर वरना sir. यहाँ पे हम टोटल अमाउंट लिखते हैं ना। नहीं, टोटल हमको नहीं लिखना है, मेरी मर्जी में क्यों लिखूं? क्यों कंफ्यूज Okay, करने का बच्चों को? अभी नहीं वो सब सिखा, मैं जैसे सिखा रहा हूँ वैसे सीखो, एकदम इजी लगेगा। अभी तक कोई डाउट है किसी को? No, sir. Everyone? Okay. Then next transaction, May में। Next. Sale. Next सर 80 transaction यूनिट is in सेल हो May। गया। क्या हो रहा है भाई? Sale. सेल Offer. 80 यूनिट्स। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सर मई में हो रहा है, एंड परचेज वाला कुछ नहीं है, सेल हो रहा है। अब सेल के लिए मेरे पास दो चीज है बेटा, या तो मैं 40 वाला बेचूं या तो मैं 50 वाला बेचूं। कौन सा बेचूंगा? इफ इट इज 40 वाला फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। 40. सबको आ 40, गया, 40. सबको आ गया, सबको आ गया। ऑल आर वेरी ग्रेट, हो गया। इसमें क्या सिखाना था? तो सर मेरे को बेचना है 80 यूनिट, आई विल अप्लाई द रेट ऑफ 40, so I will get the value as, I'll get the value as 3,200. 3,200. Okay. So what is the 3,200. balance now? What is the balance now? 20. Yes, balance is 20. Rate will be 40. 40, and amount will The be amount will be 800. 800, 800. as well as It is 14. 100, 100, 100. 100, 50, 500. 5,000. 5,000.
Very good, very good. Big round of applause for everyone. सबने सीख लिया FIFO method. आसान है, कुछ difficult नहीं है. Now next, again we will be getting the goods on July. next. I am getting the goods in the month of July. How much I am getting? 200. 200 units. What rate I At the will rate of apply? 40. What rate I will apply? 40 per units. 40 per unit. What will be the 8,000. amount? 8,000. Is there any 8,000. sale? Is there any No. sale? No. Sir. No. So what is the balance with me? What is the balance? 20. Yes, we will go like this only. First, 20, we will go 40, with this. 800. Yes, 20, quantity, 40, 40. rate, 800 is amount, sir. 800. Next, 150, 5,000. 5,000, sir. Next, 200. 200, 40. 40. 8,000. 40. Very good. तो अभी मेरे पास 3 टाइप 800, का 8,000. स्टॉक आ गया. अब मुझे वापस अक्टूबर में बेचना है. अब अक्टूबर कितना में बेचना है बेटा? 200 स्टॉक बेचना है. 200. 200 units. यहाँ पे भी FIFO का लॉजिक आएगा. ठीक है, परचेज तो कुछ Yes, नहीं sir. है. There is nothing as such which we have purchased, but there is a sale. यहाँ तक किसी को डाउट? No, sir. No, sir. इतना No, sir. 100% ये क्वेश्चन रहेगा. इंटरनल एग्जाम हो, एक्सटर्नल एग्जाम हो, हर एक जगह रहेगा. कितना मजेदार टॉपिक है. मजेदार क्यों है? क्योंकि आपने चीजों को समझा, आपने चीजों को अपने लाइफ से कनेक्ट किया. That's why you are finding interesting. This should be the way of learning. Understood, children? Yes, कनेक्ट sir. करो ऐसे एग्जाम्पल से जो अपने को समझ में आए. तो चीजें, अच्छा मच्छी ऐसे बिकता है, फ्रूट्स ऐसे बिकता है, दूध ऐसा बिकता है, ठीक है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ऐसा बिकता है, तो अपने को समझ में आता है. कॉमर्स इज फुल ऑफ प्रैक्टिस. जितना ज्यादा आप कनेक्ट करोगे उतना आता है. Are you enjoying learning financial accounting? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You will enjoy. My request would be, आपकी अगर फ्रेंड अदर डिविजन्स में है उनको भी बोलो. अगर उनको कोई डिफिकल्टीज है, आई एम अपलोडिंग दिस वीडियोज ऑन रेगुलर बेसिस. दे कैन आल्सो फॉलो दिस. Very, very important. This is the way to learn in higher education, not to mug up and vomit. जो आज तक आप लोग करते थे, रट लेना और एग्जाम में वोमिट करना. समझा? पता नहीं. क्यों हुआ? पता नहीं. क्यों हुआ था? पूछने का नहीं. नो. ओके. सो नाउ बेटा आई वांट 200 यूनिट्स. कैसे कैसे लेंगे बताओ. फर्स्ट कौन सा लेंगे? First का 20. फर्स्ट का 20. 20. इसलिए बोलते हैं इसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. 20. अरे 180. गलत किया ना 200 इसमें. ये तो गलत किया. 200. अरे गलती हुआ है भाई, सबसे भी गलती होती है. क्या रेट लेंगे? 40. 40. 800. 800. 800. Then 100. 100. 50. 5,000. 80, 40, 100, 3 to 0. 50, 5,000. 50, सर आने लगा. 5,000. दिख नहीं रहा है क्योंकि वो मैंने उसको थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर रखा है. फिर 80, 40, 40. 80, 30 to 100. 40, 200. 1,200.
अब क्या बैलेंस रहा बेटा मेरे पास? 120, 40, 480. 120, 40, 480, 120 40, 40, 4800. 480. 4800. सही जवाब. This will be the closing balance. This is the closing balance. Okay. This is my closing stock. If I follow FIFO method. कौन बकवास कर रहे थे? भव्या. Okay. Understood, Yes, sir. everyone? If anyone has any Yes, doubt, sir. please let me know. Let me see how much you have understood. Kindly join again with the same link. Okay, अभी 20 minutes का एक एक्स्ट्रा लेक्चर होगा एंड उसमें हम आपको देखेंगे कि आपको ये सारी चीजें कितनी समझ में आई. ठीक है? So again, please rejoin with the same link.